السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یورپی یونین کونسل کے سربراہ چارلس میشل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کمیشن کی سربراہ اورسولا وان ڈیر لین کے اسرائیلی حامی رویے نے یونین کے اعتبار کو نقصان پہنچایا ہے۔ بیلجیم کی سرکاری خبررساں ایجنسی بیلگا کے مطابق میشل نے منعقدہ پریس کانفرنس میں وان ڈیر لین کے اسرائیلی حامی موقف کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ میشل نے کہا کہ وان ڈیر لین کے اسرائیل کے لیے ظاہر کردہ بھرپور تعاون نے نہ صرف یونین کے اندر اختلافات پیدا کیے ہیں بلکہ یونین کے اعتبار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یونین پر عالمی بے اعتباری کا بدل ہم چکا رہے ہیں۔ میشل نے یورپی یونین کمیشن کو ضرورت سے زیادہ سیاسی ہونے اور رکن ممالک کی منظوری لیے بغیر بیانات جاری کرنے کا بھی قصوروار ٹھہرایا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین کے رکن 27 ممالک کے تقریباً 40 کروڑ رائے دہندگان 6 تا 9 جون کو متوقع انتخابات میں یونین کی نئی انتظامیہ کو منتخب کریں گے۔ فن لینڈ میں فلسطین کی حامیوں نے جنگی مجرم کے نعرہ لگا کر یورپی یونین کمیشن کی سربراہ اورسولا وان ڈیر لین کے خلاف احتجاج کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی پوسٹوں کے مطابق اورسولا نے یورپی پارلیمنٹ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کا دورہ کیا اور نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ وان ڈیر لین کے خطاب کے دوران فلسطین کے حامی نوجوانوں نے جنگی مجرم کے نعرے لگا کر اس جرمن سیاستدان کے خلاف احتجاج کیا اور انہیں تقریر روکنے پر مجبور کر دیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں اور دونوں فریقوں سے غزہ میں تنازع ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ سمٹ میں شرکت کرنے والے زیلنسکی نے کہا، یوکرین دونوں ریاستوں اسرائیل اور فلسطین کو تسلیم کرتا ہے اور اسرائیل کو روکنے، اس تنازع کو ختم کرنے اور شہری آبادی کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ دوا دیوار 7 اکتوبر کے واقعات یعنی اسرائیل پر حماس کا حملہ اور اس کے بعد کیا ہوا غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے جو کی تاریخ سے جاری ہے، اس کا الگ سے جائزہ لینا چاہیے۔ زیلنسکی نے 1 جون کو سنگاپور کا دورہ کرتے ہوئے اور سنگاپور، مشرقی تیمور اور فلپائن کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ سربراہی اجلاس میں یوکرینی رہنما نے چین پر الزام لگایا کہ یہ 15 تا 16 جون سوئٹزرلینڈ میں یوکرین سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا ہے اور دوسرے ممالک کو شرکت نہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ چین کے علاوہ کئی عرب ممالک اور پاکستان نے سوئٹزرلینڈ میں امن سمٹ کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ نے آج تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ مملکت فلسطین کو تسلیم کر لیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام عمل میں آئے۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کی جانب سے مملکت فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیے جانے کے 1 ہفتے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ تینوں یورپی ممالک کے اس اقدام پر اسرائیل میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بتایا کہ فلسطین اور سارے مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے یہ ابتدائی شرط ہے جس کی شروعات غزہ میں جنگ بندی کے فی الفور اعلان سے ہوئی اور رافع میں مزید کوئی فوجی حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کا بتدریج خاتمہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا ایرانی انقلاب کے بانی اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خامنی کی برسی کے موقع پر تہران میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کا بتدریج اختتام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے غزہ جنگ شروع کر کے اپنے آپ کو بند راہداری میں پھنسا لیا ہے۔ غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل کے عرب دنیا سے تعلقات اور خطے پر حکمرانی کا منصوبہ مشکلات میں پڑ گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب پر اسرائیلی فضائی حملے میں اسلامی انقلابی گارڈ کارپوریشن کے مشیر جاں بحق ہو گئے۔ ایران کی تسنیم خبررساں ایجنسی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حلب پر کل رات کے حملے کے دوران شام میں IRGC کے مشیروں میں سے ایک سعید بیار شہید ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹو فار ہیومن رائٹس وارمنیٹر نے اس سے قبل کہا تھا کہ مغربی حلب صوبے میں حیان میں ایک فیکٹری پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے جس میں شامی اور غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں۔ اسلام پسندی کے خلاف فرانس کی لڑائی میں مسلم اسکول مشکل میں پھنس گئے ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر فرانس ایمانوئل میکرون نے یہ کریک ڈاؤن ان کے بقول فرانس میں اسلامی علیحدگی پسندی اور انقلاب اسلام کے خلاف شروع کیا ہے کیونکہ حالیہ برسوں کے دوران بیرونی اور ملک میں فروغ پانے والے انتہا پسندوں کی جانب سے مہلک جہادی حملے کیے گئے۔ اس کریک ڈاؤن کے تحت مسلم خانگی اسکول ایوریوس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو 2 ملین یورو کے لگ بھگ سالانہ سرکاری امداد ان بنیادوں پر روک دی گئی ہے کہ وہ فرانس کی قومی تعلیم رہنما خطوط کی روشنی میں سیکولر اصولوں پر عمل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سیہامہ ڈینگویر نے جن کے 2 بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں بتایا کہ یہ ہائی اسکول بہت ہی اچھا اسکول ہے اور اس کا معیار تعلیم
काफ़ी बुलंद है। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट स्कूल खुले जहन का स्कूल है, उसे कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। मैक्रो ने मुसलमानों को दाग लगाने की तरदीद की और कहा कि फ्रांस के समाज में इस्लाम के लिए जगह है, ताहम हुकूक व मुस्लिम ग्रुप्स का कहना है कि एवरेस्ट जैसे स्कूलों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम ये जाहिर करता है कि हुकूमत मजहबी आज़ादी पर असरअंदाज हो रही है और मुसलमानों को उनकी पहचान बताने के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया गया है। जज डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर मुजरिम करार देते हुए 11 जुलाई को इनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। साबिक सदर ट्रंप को खामोशी की कीमत और कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी के मुकदमात में तमाम 34 इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत की 12 रुकन पर मुश्तमिल ज्यूरी के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले सदर बन गए हैं जिन्हें किसी जुर्म में बाकायदा सजा सुनाई गई। अमेरिकी कानून के मुताबिक साबिक सदर को हर जुर्म के लिए 4 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है और ये सजा 11 जुलाई को दी जाएगी। इस हवाले से ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में मेज़बान मारिया मेमन ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की और सजा के बाद ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक अहम सवालात उठाए। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने साल 2016 के इंतखाबात से पहले अपने वकील माइकल कोहन के जरिए फिल्मों की अदाकारा स्टारमी को $1,30,000 अदा करने के लिए कहा था। साबिक अमेरिकी सदर ने इस रकम को अदा करने का इसलिए कहा था कि फिल्मों की अदाकारा स्टारमी ये इंकशाफ ना कर दें कि इनका सदर ट्रंप के साथ एक ताल्लुक़ कायम हुआ था। उन्होंने इस काम के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में 34 मुख्तलिफ तरीक़ों से जालसाजी की थी। मारिया मेमन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त 4 फौजदारी मुकदमात का सामना है, जिसमें खामोशी की कीमत और कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी जिसमें इनको सजा हुई। याद रहे कि अदालत ने 6 हफ्तों के दौरान 22 गवाहों के बयान सुने। मुत्तफ़िक़ा फैसले पर पहुंचने से पहले 12 जजों ने 2 दिन तक गौर व खौज भी किया। दूसरा सवाल यह है कि क्या वो बहैसियत सदारती उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इसका भी हाँ में ही है, क्योंकि अमेरिकी कानून में इस बात की इजाज़त है कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले शख्स को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि फौजियों की तादाद बढ़ाने के लिए गैर मुल्की शहरियों को भी फौज में भर्ती किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स ने कहा कि अफवाज में 4,400 अफराद के खुलापुर करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुनिया के साथ तिजारत की वजह से गैर मुल्की अफवाज के दबाव के बाद नाजुक हालत में है, लिहाजा गैर मुल्की शहरियों को भी फौज में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। कुल वक्ती एहलकारों की तादाद को 63,600 तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करने की तौसी करते हुए माल्स ने ऐलान किया कि हुकूमत 2040 तक इस तादाद को 80,000 तक बढ़ाने का इरादा रखती है। उन्होंने बताया कि फ़ौज में भर्ती 5 आइज़ के नाम से मंसूब अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की तरफ से बनाए गए इंटेलिजेंस इत्तेहाद तक और ऑस्ट्रेलिया में अकामा होल्डर्स तक महदूद होगी। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम न्यूजीलैंड के बाशिंदे जुलाई से, जबकि अमेरिका, बरतानिया और कैनेडियन भी जनवरी 2025 से फ़ौज में भर्ती हो सकेंगे। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट्स ने ऐलान किया है कि हज सीज़न 2024 के लिए 2 जून तक फ़िज़ाई, बहरी और ज़मीनी रास्ते से 9,35,966 आज़मीन की मुमलिकत में आमद हो चुकी है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वो आज़मीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरवायकार ला रहे हैं। 8,96,287 आज़मीन फ़िज़ाई रास्ते से, 37,280 ज़मीनी और 2,399 बहरी रास्ते से मुमलिकत में दाखिल हो चुके हैं। क़ब्लज़ी जवाज़ात के तर्जुमान मेजर नासिर अल अतीबी का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन की खिदमत के लिए 138 ज़बानों में फ़ौरी तर्जुमा करने की डिवाइसेस फराहम कर दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत उमूर ने आज़मीन को मुतनबा किया है कि अगर नसक कार्ड खोया तो 10,000 रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने हुज्जाज के लिए खुसूसी पैगाम में आज़मीन को खबरदार किया है कि आज़मीन को नुसक कार्ड की गुमशुदगी की सूरत में 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वज़ारत की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया है कि हज की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज नुसक कार्ड की हिफाजत यकीनी बनाएं, क्योंकि इसके गुम होने की वजह से फरीज़ा हज में मुश्किलात पेश आ सकती है। मदीने मुनव्वरा में महकमा सेहत ने गुर्दों के आर्जे में मुब्तला आज़मीन हज के लिए डायलिसिस क्लिनिक कायम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक डायलिसिस क्लिनिक किंग फहद अस्पताल में कायम किया गया है, जहां रोज़ाना 22 अफराद को तिब्बी खिदमत फराहम की जा सकती है। महकमा सेहत ने कहा है कि अब तक क्लिनिक से 106 आज़मीन हज ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। महकमा ने बताया कि गुर्दों के मरीज़ आज़मीन हज को डायलिसिस की सहूलत फराहम करने के लिए हज मिशन के जरिए राब्ता किया जा सकता है।
सऊदी अरब में रोड जनरल अथॉरिटी ने आज़मीन हज की सहूलत और अरफात में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मस्जिद निमरा के इर्द गिर्द सड़कों को सफ़ेद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सड़कों पर मखसूस किस्म का सफ़ेद रोगन लगाने से सतह की हरारत में 20 दर्जे कमी हो जाती है। रोड अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अतीबी ने कहा है कि सड़कों पर लगाया जाने वाला मखसूस रोगन मुकामी तौर पर तैयार हुआ है और इसमें धूप की हरारत कम जज्ब होती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल यही तजुर्बा महदूद रुकबे पर किया गया था जिसके अच्छे नतायज बरामद हुए। उन्होंने बताया कि मीना में जमरात जाने वाले रास्ते पर यही रोगन लगाया गया तो वहां 12 से 15 दर्जे गर्मी कम हो गई। इस साल वसी पैमाने पर तजुर्बा किया जा रहा है जहां मस्जिद निमरा के करीब कम व बेश 25,000 मुरब्बा मीटर पर रोगन लगाया गया है। सऊदी अरब की नई शुरू हो रही फ़िज़ाई कंपनी रियाज एयर जुनूब मशरक़ी एशिया तक अपना दायरा अमल वसी करने के लिए मुआहदा करेगी। अखबार 24 के मुताबिक रियाज एयरलाइन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मिल्कियती कंपनी है जिसके क़याम का ऐलान गुज़िश्ता साल किया गया था। तौक़्क़े है कि आइंदा साल से नई फ़िज़ाई कंपनी अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। एयरलाइन की जानिब से जुनूब मशरक़ी एशिया की फ़िज़ाई कंपनियों के साथ नेटवर्क को वसी करने के लिए मुआहदे किए जाएंगे। एयरलाइन से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद ने अपनी शिनाख्त ज़ाहिर न करने पर बताया कि रियाज एयर की जानिब से इंडियन और अमरीकी फ़िज़ाई कंपनियों के साथ तवील मसाफ़ती परवाज़ों के लिए जल्द हतमी मुआहदे किए जाएंगे। ज़राए का कहना था कि एयरलाइन आइंदा साल के वसत तक बाकायदा तौर पर फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू कर देगी। इस हवाले से इमारात एयर और खतरी एयरलाइन के साथ भी ताउन किया जाएगा ताकि एविएशन के मैदान में इनके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़ैदान ने कहा है कि तुर्किया और चीन के ताल्लुकात इलाक़ाई और आलमी अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में माउन साबित होंगे। हक़ान फ़ैदान ने इन ख़यालात का इज़हार चीन के दारकूमत बीजिंग में अपने हम मनसब वांग यी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तुर्किया और चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बहुत से शोबों में एक जैसा मौक़िफ़ रखने के अलावा दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी निज़ाम में ज़्यादा मुनसिफ़ाना तफ़हीम के हामी हैं। फ़ैदान ने कहा कि तुर्किया और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात इलाक़ाई और आलमी अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में भी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एशिया बहरहाल में हो रहे पेशरफ्त और इनके जोग्राफियाई सियासी मज़ाहिर पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम समझते हैं कि इसके लिए मुश्तरका तरजीहात की बुनियाद पर ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने चीनी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी व तिजारती और सरमायाकारी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करके बरामदात में इजाफे का ख्वाहां है। CPEC आला मियार की तरक्की के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से पाकिस्तान की साइंसी व टेक्निकी तरक्की को फ़रोग़ मिला है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर मुश्तरका मंसूबे बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इस दौरे के ज़रिए पाकिस्तान दोनों ममालिक की कंपनियों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़, खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन, सनतों के क़याम और मुश्तरका मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान की इफ़रादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने, सनतों और टेक्नोलॉजी की मुंतक़ली में सहूलत, पाकिस्तान की मसनूआत की पैदावार में इजाफ़े की उम्मीद है।